आइजैक न्यूटन कहते हैं, लाइट इज नॉट द सिंपल थिंग दैट एवरीवन इमेजिन्स इट टू बी. It is a substance that exhibits both reflection and refraction, showing its dual nature. Thomas Young कहते हैं, the nature of light is to illuminate, the nature of darkness is to obscure, but light, when reflected, reveals the true form of all things. Good morning. हमारा आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन की एक दो डेफिनेशन बताऊंगा. डेफिनेशन 1, रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग सम पॉलिश्ड सरफेस. यानी जब भी लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है तो ये वापस उसी मीडियम में चली जाती है. यहाँ पर एक और डेफिनेशन है, रिफ्लेक्शन इज द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग सम पॉलिश्ड सरफेस. अब पॉलिश्ड सरफेस क्या है? इट कैन बी अ स्मूथ मेटल सरफेस, जिन्हें हम कभी कभी रिफ्लेक्टर्स भी कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं. एक स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, और उसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं. स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन का मतलब है रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस. अब जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम ए रफ सरफेस और इरेगुलर सरफेस और bumped surface. Specular reflection में there is no change in the nature of beam of light. The reflected rays are parallel and they can produce a sharp and clear image. But in case of irregular reflection, the nature of beam of light is changed. The reflected rays scatter in multiple directions, resulting in a blurred or fuzzy image. यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन के लिए स्मूथ सरफेस होना ज़रूरी है, because light rays striking a smooth surface are reflected in a single direction and may be parallel to each other. Specular reflection gives us a clear image. The reflected rays get converged at a single point, forming a precise and exact image of the object. Specular reflection takes place from the surface of mirrors. It can take place from polished metal surfaces or smooth metal surfaces and still water surfaces. लेकिन diffused reflection एक रफ सरफेस से होता है, इरेगुलर सरफेस से हो जाता है, जिससे लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन रिफ्लेक्ट हो जाती है. डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन गिव्स अस a blurred image of an object. It scatters light and the scattered light rays do not converge at a single point, और उससे एक शार्प इमेज, क्लियर इमेज नहीं बन पाता है. Diffused reflection can take place from a wall, or it can take place from a paper or any rough piece of wood. चलिए आगे बढ़ते हैं. Here are some important terms. Number 1. What is incident ray? The ray of light that strikes the reflecting surface. That is called incident ray. ये वो रे है जो किसी ऑब्जेक्ट या सोर्स ऑफ लाइट से आती है और मिरर के साथ या रिफ्लेक्टर के साथ टकराती है. What is normal? Normal means perpendicular. So normal is a perpendicular on the reflecting surface on the mirror surface at the point of incidence. What is reflected ray? The ray of light
that bounces off the reflecting surface, यानी जो रे मिरर से वापस आती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. What is the angle of incidence? It is the angle that is formed between incident ray and normal. What is angle of reflection? It is the angle formed between reflected ray and normal. यहाँ पे आप नोट कीजिए, what is angle of glancing or grazing angle? Actually, it is the angle between mirror surface and incident ray. यानी जो इंसिडेंट रे और मिरर के दरमियान जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं ग्रेजिंग एंगल. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. रिफ्लेक्शन की नॉर्मली 2 लॉज हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 लॉज लिखे हैं. जो पहला लॉ है, इट स्टेट्स that incident ray, normal and the reflected ray, they all lie in the same plane. यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में है, से XY प्लेन और एनी अदर प्लेन. ये तीनों कोप्लानर होने चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए. दूसरा लॉ जो है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस का मेजर है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मेजर होगा. तीसरा लॉ, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन ईदर साइड ऑफ नॉर्मल. यानी नॉर्मल की एक तरफ होती है इंसिडेंट रे और दूसरी तरफ होती है रिफ्लेक्टेड रे. यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्शन का एक स्पेशल केस डिफाइन किया है, दैट इज रिट्रेसिंग. When the incident ray strikes a mirror at right angle to the surface, that is along the normal. Here angle I is 0. The reflected ray bounces back along the same path but in opposite direction. Here angle R is also 0. यहाँ पे the path of light is reversed. जिस रास्ते से लाइट आती है उसी रास्ते से लाइट वापस जाती है, if it is along the normal. रिफ्लेक्शन नेचर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है. आप नेचर में कई जगह पे रिफ्लेक्शन प्रोसेस ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे मिरर्स और रिफ्लेक्टर्स. मिरर्स बनाए गए हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए और हमें एक क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलता है. आप वाटर सरफेस से भी रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कहीं पे आपको पानी में आसमान की इमेज दिखाई देती है या आसपास चीज़ों की इमेज दिखाई देती है. अब शाइनी ऑब्जेक्ट्स का जो राज है दैट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्शन, जैसे मेटल सरफेसेस, ग्लास सरफेसेस. और जो हम ये खूबसूरत दुनिया देखते हैं वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से देखते हैं. जब भी किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट आके हमारी आंखों तक पहुंच जाती है और हम उन चीज़ों को देख पाते हैं.